Everyone, how are you all? Hope so you all are fine. Today we will discuss about the difference between mixtures and compounds and what are mixtures. But before we discuss this topic, we must know what we have done in previous lecture. We have done pure substances, metals, non-metals, difference, elements and compounds characteristics. So let us start this topic now. Impure substances or mixtures. What are these? The combination of two or more substances which may be element or compound which are physically mixed and are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion, that is called impure substances or mixtures. दो substances या दो से ज़्यादा substances जो elements या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, कंबाइन होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. हम मिक्सचर्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग मिक्सचर्स? मिक्सचर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एज सच प्योर सब्सटेंसेस are not so useful as compared to mixtures. Like we take one example of gold. Gold 24 कैरेट का होता है जिसे कि हम as such यूज़ नहीं कर सकते प्योर फॉर्म में, बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही वियर और टीयर हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर सिल्वर और कॉपर का मिक्सचर करते हैं, उसे थोड़ा सा इम्प्योर बनाते हैं और वो 22 कैरेट के रूप में ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर. देयर आर टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमो मीन्स यूनिफॉर्म, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. यूनिफॉर्म, like we take one example of salt solution. In salt solution you can't see any visible boundaries. Salt and water mixed very uniformly means whole solution is uniform and there is no visible boundaries, no clear boundaries are there. So that is called homogeneous mixture. What are heterogeneous mixture? In heterogeneous mixture, like we take one example, soil and sand mixture. Both are in solid state but they have visible boundaries. When they mix, they have visible boundary, they are not uniform throughout. If we take oil and water mixtures, oil and water mixture have visible boundaries. ऑयल टॉप पर रहता है, वाटर नीचे रहता है, तो दोनों की विजिबल बाउंड्रीज हैं. दिस सोल्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट इज how we can differentiate compounds and mixtures. How we can differentiate compounds and mixtures. तो हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं. What's this activity? As you can see, there are two china dishes in front of you. There is one china dish A marked as china dish A and other china dish marked as china dish B. Both contain iron fillings and sulfur powder. China dish A, there is no heating, and in china dish B you can see there is heating with the help of Bunsen burner. So let us start understanding this activity. Here you can see that china dish A and china dish B, iron filling plus S powder means sulfur powder is there. Iron fillings, Fe fillings means iron fillings plus sulfur powder plus heating. Triangle shows heating. Point number second, if in china dish there is no heating, then it retains color because there are no chemical reaction occurs in china dish A. And in china dish B, after heating it forms black mass because in china dish B compound is formed, and compound is what? Compound is iron sulfide. Iron plus sulfur हीटिंग से क्या होगा, बनेगा आयरन सल्फाइड विच इज़ अ कंपाउंड. और कंपाउंड जो है उसका अपना एक करेक्टरिस्टिक है, तो करेक्टरिस्टिक दिखाते हुए ब्लैक मास बन जाता है.
पॉइंट नंबर थर्ड, रिएक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। एज वी नो कि चाइना डिश ए के अंदर सल्फर और आयरन फिलिंग्स हैं, हीटिंग भी नहीं की, तो दोनों ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दोनों ही अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी। तो जब मैग्नेट लेकर आएंगे तो आयरन फिलिंग विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। बट इन चाइना डिश बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करेंगी, बिकॉज यहाँ पर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अब कंपाउंड ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। इसीलिए जब मैग्नेट को हम चाइना डिश बी की तरफ लेके जाते हैं तो देयर इज़ नो अट्रैक्शन। आयरन सल्फाइड जो बना है या जो कंपाउंड बना है वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट के टुवर्ड्स। फोर्थ पॉइंट, ऑन एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड। जब कार्बन डाइसल्फाइड चाइना डिश ए के अंदर ऐड किया जाता है तो सल्फर इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, तो सल्फर विल डिजॉल्व, आयरन लिविंग बिहाइंड आयरन फिलिंग्स। बट इन केस ऑफ चाइना डिश बी, कार्बन डाइसल्फाइड विल नॉट डिजॉल्व दिस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ कंपाउंड बना है तो वो डिजॉल्व नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑन एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Dilute hydrochloric acid has reacted to iron. आयरन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। बट अगर हम बात करें कि एसिड आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करे तो हाँ रिएक्ट करेगा और इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड which has hydrogen sulfide which has rotten egg like smell. क्योंकि वो कंपाउंड है तो कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ मिक्सचर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ जो चाइना डिश ए है उसमें कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, वहाँ पर सब मिक्सचर्स हैं, तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हुए रिएक्शन कर रहे थे। बट जहाँ हीटिंग हुई वहाँ कंपाउंड फॉर्मेशन हुई, और कंपाउंड फॉर्मेशन सिर्फ कंपाउंड ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नेवर शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने कंपाउंड्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। नेक्स्ट, अब एक बेसिक सी बात कि अगर हम एलिमेंट को देखें तो जैसे आप देख रहे हो सिंगल स्फीयर एक एलिमेंट शो किया, या फिर डबल स्फीयर एक मॉलिक्यूल शो किया। कंपाउंड आप देख रहे हो, दो बॉल्स दिख रही हैं, एक ग्रीन और दो पर्पल, अलग अलग तरह की, और दोनों बॉन्ड से लिंक्ड हैं, यानी कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना। मॉलिक्यूल्स में भी केमिकल बॉन्ड है। मिक्सचर में आप देख रहे हैं अलग अलग बॉल्स नज़र आ रही हैं, अलग अलग बॉल्स नज़र आ रही है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ये अलग अलग बॉल्स हैं या अलग अलग एटम्स हैं या अलग अलग एलिमेंट्स बोल सकते हो आप इसे। तो ये एक साथ लाके रख दी हैं, मतलब ये मिक्स कर दी गई हैं। बट यहाँ पर कोई लाइन या कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स दे आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर। इट मीन्स जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें बॉन्ड नहीं बनता है, वो जस्ट मिक्स हो जाते हैं। कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण ही वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, चाहे वो अलग अलग हो, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। मिक्सचर्स में कोई डेफिनाइट प्रोपोर्शन नहीं, आप देख रहे हैं कोई बॉल छोटी है, कोई बॉल बड़ी है, अलग अलग कलर्स के हैं, और कोई बॉन्ड नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स डिफरेंस। आई होप सो कि आप सब ये अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाइए इसके और अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।